Reactions of alcohols or reactions of alcohols involving COH bond. COH bond, that means the bond between carbon and oxygen, cleavage. We have discussed reaction of alcohols in which OH bond cleavage takes place. So here we will discuss now a set of reactions involving COH bond cleavage. So we know that we have three types of alcohols. Mainly we have primary alcohols, we have secondary alcohols, and we have tertiary alcohols. But this CO bond in tertiary alcohols is weaker than the primary. अगर हम इन दो का कंपैरिजन करेंगे, the CO bond in tertiary alcohols is weaker than the CO bond in primary alcohols. Therefore reactivity order, जो reactivity order है इन alcohols का, that is tertiary is very much reactive as compared to secondary, and the secondary is more reactive as compared to primary. This is due to, अब यहाँ पर रीजन क्या है इसका, this is due to the electron releasing effect of the alkyl groups, that means plus I effect, plus inductive effect of the alkyl groups. Why tertiary is more reactive as compared to primary? It is because of the plus I effect or electron releasing effect, electron releasing inductive effect of the alkyl groups attached to tertiary carbon. सबसे पहली रिएक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड्स. हाइड्रोजन हेलाइड्स जो हमारे पास अल्कोहल्स है, दे रिएक्ट विद दीज आर अल्कोहल्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल. इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हेलाइड HX. ये हाइड्रोजन हेलाइड है. So we get alkyl halide. हमें मिलता है alkyl halide. Alkyl halide RX. We already discussed this reaction. Actually, it is a nucleophilic substitution reaction. ये nucleophilic substitution reaction है. Let's we'll get here water. So alcohol reacts with hydrogen halides to give alkyl halide plus water. So इनका जो reactivity order होता है hydrogen halides का, that is HI. is more reactive than HBr, is more reactive than HCl. So HCl is the, इसकी जो reactivity है वो सबसे कम है HCl की reactivity. अगर हम करेंगे HCl react with primary and secondary alcohol, अगर लिखे हम with HCl, so it requires catalyst. इसको हम catalyst यूज करना पड़ता है इसके साथ रिएक्ट करने के लिए. HCl को रिएक्ट करने के लिए with primary and secondary alcohol, we need catalyst. ZnCl2 anhydrous, हमें ये catalyst चाहिए. टर्शरी के साथ हमें catalyst की जरूरत नहीं पड़ती. अगर हम लेंगे HCl with the tertiary, वहां पर हमें catalyst की जरूरत नहीं पड़ती. For example, we will right, for example, CH3, CH2, this is alcohol, plus HCl halide, this is ZnCl2, ये catalyst है, anhydrous, ये anhydrous catalyst है. थोड़ा heat up करेंगे, so we'll get CH3, CH2, X plus H2O. So this is हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज CH3. ये क्लोरो इथेन, ये इथेनॉल था, यहां से बन गया हमें क्लोरो इथेन. ये क्लोरो इथेन है. सो इथेन से बन गया क्लोरो इथेन, दिस क्लोरो इथेन. सो विल टेक सेकेंडरी, दिस CH3, CH3, दिस इज CHOH. दिस सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी था, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. अगर हम HCl करेंगे इसके साथ, सो वी हैव टू, इसको हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा. सो विल गेट CH3, CH, दिस इज CH3, दिस इज Cl plus H2. एग्जैक्टली टर्शरी के साथ अगर हम लेंगे यहाँ पर टर्शरी, विल टेक
here tertiary alcohol. This is CH3, CH3, this is CH3, this is OL, this is tertiary alcohol. So we'll take HCl. यहाँ पर हमें सिंपली देना पड़ेगा रूम टेम्परेचर tertiary के साथ, because it is tertiary is very reactive. So I will get CH3, CH3, this is CH3, this is Cl plus H2O. So this is क्लोरो, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है. ये हम इसको हम अगर आईपीएस में देंगे, दिस इज 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन. अगर हम अब ये लेंगे, अगर हम HI करेंगे, HI के साथ रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल को हम करेंगे HI के साथ रिएक्ट. फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर, दिस इज अल्कोहल CH3 CH2OH. इसको हम करेंगे HI के साथ रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, यानी इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस. ये रेड फास्फोरस है, वन ऑफ द ड्रॉप ऑफ फास्फोरस. यहाँ पर अल्केन बनता है, यहाँ पर बनेगा अल्केन CH3 अल्केन बन गया यहाँ पर. सो और यहाँ पर निकलेगा I2, आयोडीन भी निकलेगा और बनेगा यहाँ पर वाटर. सो ये हो गया. अगर हम करेंगे HI रिएक्ट अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, सो वी विल गेट ए डिफरेंट प्रोडक्ट. हमें वहाँ पर एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज वी विल गेट अल्केन. हमें अल्काइल आईडी मिलेगा, वी विल गेट अल्केन, दैट इज इथेनॉल से मिलेगा हमें इथेन, और वी विल गेट I2 आयोडीन एंड दिस वाटर. अब जो ये 3 किस्म की अल्कोहल है, यानी दिस द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी, जो इनकी जो डिफरेंस इन रिएक्टिविटी है विद HCl, यानी HCl के साथ ही इन अ डिफरेंट मैनर रिएक्ट होते हैं. दिस डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लास ऑफ अल्कोहल्स with HCl distinguishes them, यानी ये उनको फर्क करती है, distinguishes them from one another. एक दूसरे उनको ये फर्क करते हैं, यानी एक दूसरे में ये फर्क करने के लिए हम करें. यानी हमारे पास जो 3 अल्कोहल्स हैं, जो इनकी जो ये डिफरेंस है इन द रिएक्टिविटी विद HCl, ये उनको डिस्टिंग्विश करती है, फर्क करती है आपस में. इसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं इसको, ल्यूकास टेस्ट. यानी उनका जो हम फर्क करते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टिविटी विद HCl, उसको हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट. यहाँ पर जो ल्यूकास टेस्ट में हम करते हैं, एक रिएजेंट यूज दैट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl प्लस ZnCl2. ये HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है, अनाइड ZnCl2 का मिक्सचर होता है. अल्कोहल जो होते हैं, दे आर वेरी मच these soluble in this Lucas reagent. यानी अल्कोहल इसमें soluble है, but their halides, अगर वो बनाएंगे क्लोराइड्स, वो insoluble है. इनके क्लोराइड्स insoluble होते हैं. अल्कोहल soluble है इस Lucas reagent में, but their उनके जो क्लोराइड्स हैं वो insoluble हैं in this Lucas reagent. जो ही हम अल्कोहल इसको ऐड करते हैं, सो वहाँ पर अगर इमीडिएटली वहाँ पर यानी टर्बिडिटी इज प्रोड्यूसर, अगर वहाँ पर इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई, यानी क्लाउडीनेस आ गई, यानी जो ही आप अल्कोहल को ऐड करते हैं ल्यूकास रिएजेंट, वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं टर्बिडिटी. अगर वहाँ पर इमीडिएटली आ गई टर्बिडिटी, यानी ऐड करने के साथ ही आ गई टर्बिडिटी, इट इज ए टर्शियरी अल्कोहल. अगर टर्बिडिटी आ गई आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 मिनट्स, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल. अगर टर्बिडिटी आ गई आफ्टर हीटिंग, यानी एट रूम टेम्परेचर वहां पर कोई टर्बिडिटी नहीं आ गई, यानी आफ्टर हीटिंग आ गई टर्बिडिटी, देन इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल. सो इस तरह इन 3 को हम करते हैं डिस्टिंग्विश. इन 3 अल्कोहल्स को, 3 किस्म के अल्कोहल्स को करते हैं डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन रिएक्टिविटी विद HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. नाउ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का? जो ये रिएक्शन अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड्स है, HCl है फॉर एग्जांपल, उसका मैकेनिज्म
इट हैज ए 3 स्टेप मैकेनिज्म। ये इसका जो मैकेनिज्म दैट इज 3 स्टेप मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप है प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल को होता है प्रोटॉन ऐड, उसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। I will get here, this is CH3 CH2OH plus this is proton जो इसे डैमेज देता है, so we'll get this I0 होगा ये because of this unshared group electron, ये प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, so I will get CH3 CH2 this OH H positive, this is called oxonium ion, oxonium ion, क्योंकि it bears this ion has positive charge on oxygen, so this is called oxonium ion। जो ये स्टेप है it is a fast step, ये fast step है। दूसरा स्टेप है यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन है इट वीकनेस दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, देयरफॉर इट गेट्स क्लीव, ये क्लीव हो जाती है CH3 CH2 OH ऐसे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस ऑक्सीजन आयन, ये बॉन्ड क्लीव होगी बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस, ये क्लीव होगी, सो विल गेट CH3 CH2, यहाँ पर होगा हमें पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ पर बनेगा वाटर, सो दिस इज ए कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन मींस इट इज अ रिएक्टिव स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, सो दिस इज अ सेलो स्टेप, इट इज अ सेलो स्टेप, ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो सेकंड स्टेप में हमें कार्बोकैटायन बनता है, जनरेशन कार्बोकैटायन होती है सेकंड स्टेप में, जो ऑक्सीजन आयन में जो कार्बोक्सिल बॉन्ड है बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस दैट गेट्स क्लीव्ड एंड वी गेट कार्बोकैटायन। सो द थर्ड स्टेप इज, तीसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है कार्बोकैटायन पे, सो विल गेट कार्बोकैटायन, वी हैव कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है, ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है, होता है हैलाइड, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हैलाइड आयन होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा ना, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा या आयोडाइड होगा, सो ये यहाँ पर ये अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन को, सो विल गेट दिस कंपाउंड CH3 CH2X, सो दिस इज अल्काइल हाइड और दिस इज हेलो अल्केन, अल्काइल हाइड और हेलो अल्केन, इट इज आल्सो ए फास्ट स्टेप, ये भी फास्ट स्टेप है। The second step जो है ना जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, that is the slowest step out of the 3 and that is the rate determining step. So now we'll take some more reactions. Reactions of alcohols with phosphorus halides. Phosphorus halides. Reaction with phosphorus halides. ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब रिएक्शंस है, phosphorus halides like PCl3 and PCl5. So we write here CH3 CH2, this alcohol, इसको हम करेंगे PCl3 के साथ, it is a nucleophilic substitution, OH will get replaced by Cl, so we'll get CH3 CH2Cl plus H3PO3, ये phosphorus एसिड है, so 3 times यहाँ पर बढ़ेगा, so this is chloroethane, ये हो गया this when we treat this alcohol with phosphorus trichloride, अगर हम इसी अल्कोहल को करेंगे हम treat with phosphorus pentahalide, ये pentahalide है, we'll get CH3 CH2Cl, ये भी nucleophilic substitution है, which will get replaced by this Cl, so we'll get POCl3 phosphoryl chloride plus HCl, so ये बन गया प्रोडक्ट हमें यहाँ पर, this is chloroethane, ये chloroethane है। अगर हम लेंगे अल्काइल, फॉर एग्जांपल we have to take alkyl iodides, alkyl iodides अगर हम these are obtained by reacting alcohol with iodine, अगर हमें बनाने पड़ेंगे यहाँ पर अल्काइल आयोडाइड्स, फॉर एग्जांपल दिस
दिस अल्कोहल, हमें यहाँ पर विल ट्रीट विद दिस पी, हमें यहाँ पर इसको ट्रीट करना पड़ेगा आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस E4. You need to get alkyl iodides. We have to treat alcohol with iodine in presence of red phosphorus. So we'll get CH3CH2I. यहाँ पर हमें फास्फोरस आयोडाइड हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, देन विल गेट अल्काइल आयोडाइड. दिस अल्काइल आयोडाइड ये वाला ये प्रोडक्ट है. So one more reaction, will take the reaction of these alcohols with thionyl chloride. So reaction of alcohols with thionyl, that is SOCl2. So हम यहाँ पर लेंगे, we treat alcohol, the alcohol है, इसको हम treat करेंगे thionyl chloride से in presence of base pyridine. So we'll get this CH3CH2Cl plus SO2 plus HCl. So this is the product. This is alkyl iodide. This is chloroethane. This is alkyl halide. यानी alkyl chloride यानी chloroethane जिसको बोलते हैं. So these were some reactions of alcohols which we have discussed here. All these reactions involve CO bond cleavage. That means the bond between carbon and oxygen.